transverse loads coming on the beam. It may be point load, let W1, W2, or it may be a UDL, or it may be a UBL. All are transverse loads having some intensity, let 10 Newton per meter, and this intensity let 15 Newton per meter, W1 let 5 kilonewton, W2 let 8 kilonewton. So due to these forces, due to these loads, the beam bent, ना वो भी beam है, क्या होता है? Bend, bending action is there. Bending action is there. So each and every point on the beam is having certain deflection. Let this is point number A, this is point B, C, D, and so on. So point A is having some deflection. Let this deflection is by A. The deflection of point D, let this is by D, and so on. And there is one point which is having maximum deflection. So that maximum deflection may be let by maximum. Okay. So in the bar problem, now suppose this is a bar. The forces are coming in axial direction. So the displacement of this point is U1, displacement of this point is U2. So this point is having 1 degree of freedom. This point is also having 1 degree of freedom. So total degree of freedom is 2. So that's why the stiffness matrix size is 2 by 2. Okay, stiffness matrix size is 2 by 2. In place of inclined truss, the displacement is U1 and vertical is V1. Here there is no vertical displacement. In bar, there is no vertical displacement in a horizontal bar. So U1, then U2, then V2. So total degrees of freedom is 4. So that's why the size of the matrix is 4 by 4. ठीक है, इस बीम के केस में there is deflection at each and every point. There is deflection and there is a slope also, है ना? Every point there is a slope. Every point there is a slope. The angle theta. Theta is the slope. So y is the deflection and theta is the slope. So at node number 1, let the deflections are V1 and theta 1. So I am again drawing a beam over here. Now I am discussing the beam problem. 1 and 2. So the vertical deflection of this point is let V1. Vertical deflection of the point 2 is V2. Slope at point 1 is theta 1. Yes, slope with the positive x-axis. And slope at point 2 is theta 2. So here our delta is displacement function, which is V1, theta 1, V2, and theta 2. So in the beam problem, we calculate or we focus our study on the vertical deflection. Okay, there is no horizontal deflection. On the vertical deflection and the slope. So each point is having 2 degrees of freedom. So there are total 4 degrees of freedom. If we model our element into one element, so the size of delta is 4 cross 1 and size of the stiffness matrix is 4 cross 4. Again, size of the stiffness matrix is 4 cross 4, right? So I am assuming the deflection is a function of A0 plus A1x plus A2x square plus A3x cube.
because it is a 4 degrees of freedom, that's why I am taking 4 constants, A0, A1, A2, A3. And the degree is 3, x cube. So this function I am assuming. I am assuming a polynomial function for the deflection. So from here, my scale is start x. So here x equal to 0 at the first node, and let the length of the element is L. Then at this point, x equal to capital L. Now, or the element length is small l, then x equal to small l over here. So if I put x equal to 0, then it will be A0 plus 0 plus 0 plus 0. And this is the deflection at point number 1, which is V1 in our case. So I will get the first constant is V1. Okay, I will get the first constant at V1. Now what is theta? Theta is nothing. It is the derivative of the deflection. Slope equal to dy by dx. So it will be the derivative of A0 with respect to x is 0. A1x is A1. A2x is x square is 2x A2. 2x A2 plus 3x square A3. So this is the equation for theta. Now I am put x equal to 0. So it is A1 plus x equal to 0, it is 0. It is also 0. And the slope at this point is theta 1. So I will write theta 1. So the second constant is equal to theta 1. Okay, so this is my first equation and this is my second equation. So 2 constants values has been found out. Now 2 constants are remaining. So I will now concentrate on the x equal to L. So if I put x equal to L in the assumed function, when I put x equal to L in this function, so what I will get? The deflection. Deflection at this point is V2. So I will write V2 must be equal to A0. A0 can be written as V1. A0 can be written as V1 plus A1x. A1 can be written as theta 1. So it is theta 1 into x. X is L. So it is theta 1 into L plus A2L square plus A3L cube. Let this is my equation number 8. There are 2 constants, so it requires 2 equations to solve. Okay, and now I put x equal to L in the theta equation. So from this theta, I will get theta 2. At the second point, theta 2 is A1. So A1 can be written as theta 1. 2A2 x can be written, x is L. So 2A2L, it is 2A2L plus 3A3 L square. 3A3 L square. This is my equation number B. Now these are the 2 equations in which there are 2 unknowns, A2 and A3. So by method of elimination, they can be solved. इनको solve कर सकते हैं. तो A2, A3 की value कितनी आएगी जरा बताइए. Solve कर सकते हैं आप लोग? Yes or no? Akash, can you solve the 2 equations? आ रही है आवाज? आ रही है मेरी आकाश? आ रही है सर आवाज? यस सर आ रही है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे A2 और A3 मिल जाएगा। ठीक है, तो टू सेव द टाइम मैं अब आप एक PDF शेयर कर रहा हूं जिसमें इनकी वैल्यू कैलकुलेटेड है और वो मैं आपको लॉगिन में आपके में डाल दूंगा उस PDF को। ठीक है, तो अब मैं इसे स्टॉप शेयर कर रहा हूं और नाउ आई एम शेयरिंग द PDF फाइल। Yes, PDF file is visible.
PDF file is visible? Yes, sir. Okay, so beam element. So this is a beam. B1 and B2 are the vertical deflection. Theta1 and theta2 are the slopes. And we have assumed the deflection as B is a function of x, so it is C0, C1x, C2x square, C3x3. ठीक है, वही चीज है, मैंने इसको A0, A1, A2, A3 ले लिया था, इन्होंने C0, C1, C2, C3 लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका डेरिवेटिव किया तो थीटा आ गया, फिर x इक्वल टू 0 पुट किया तो दो कांस्टेंट की वैल्यू निकल गई, C0 और C1 की। फिर x इक्वल टू L पुट किया, ठीक है, तो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई, ये बन गई V2 इक्वल टू और एक θ2 इक्वल टू। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, तो सॉल्व कैसे किया है, पहले इक्वेशन में तो 2 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, और दूसरे इक्वेशन में L से मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन बन गई, C2L स्क्वायर 2C2L स्क्वायर, ये माइनस होने से खत्म हो गया, तो केवल C3 बचेगा, तो C3 की वैल्यू हमारी आ गई सॉल्व करने के बाद, ये आ गई, फाइल आपको मैं शेयर कर दूंगा, तो C3 की वैल्यू ये आ गई, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए C3 का, या आपके पास पहुंची जाएगी। तो C3 जो थर्ड कांस्टेंट है उसकी वैल्यू आ गई θ1 प्लस θ2 डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई L, थर्ड कांस्टेंट हो। इसी तरह सॉल्व करने के बाद फोर्थ कांस्टेंट हमारा निकला, तो फोर्थ कांस्टेंट की वैल्यू हमारी आ गई C2 इक्वल टू दिस मच, ये फोर्थ कांस्टेंट है C2, है ना, या थर्ड कांस्टेंट कह लो, वो फोर्थ है C3, पहले निकल गया, थर्ड बाद में निकल रहा है, तो माइनस θ2 प्लस 2 θ1 डिवाइड बाई L माइनस 3 V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2L स्क्वायर, ठीक है, चारों कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ठीक है। इन चारों कांस्टेंट्स की वैल्यू को जब हमने अपने अज्यूम्ड फंक्शन में रखा, अब इन चारों कांस्टेंट की वैल्यू को हम कौन से फंक्शन में पुट कर रहे हैं, जो हमने अज्यूम किया, ये वाला C0 प्लस C1x प्लस C2x स्क्वायर प्लस C3x2, ये जो हमारा फंक्शन था, तो हम यहाँ पे ऑल दी 4 कांस्टेंट्स की वैल्यू हमें मिल गई है, तो अब वो वैल्यूज को हमने इसमें पुट करेंगे, है ना, पुट करके सेपरेट करेंगे, तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी, देखो V इक्वल टू C0, C0 की वैल्यू V1 प्लस C1x, C1 की वैल्यू θ1 प्लस C2x स्क्वायर, C2 की वैल्यू ये पूरी प्लस C3x3, तो C3 की वैल्यू ये पूरी, समझ में आ गया होगा आपको, तो V इक्वल टू पुट कर दिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, V1 को, V1 के जो कोफिशिएंट है, जो V1 के कोफिशिएंट है उनको एक तरफ कर लिया, जैसे V1 का कोफिशिएंट यहाँ पे किया है 1, तो 1 लिख लिया, V1 का कोफिशिएंट इस पॉइंट पे कितना है 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, तो ये हमने लिख दिया 3 इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर, ये माइनस भी है साथ में, तो माइनस आ गया, प्लस यहां से V1 का कोफिशिएंट आएगा 2 इंटू एक्स क्यूब डिवाइड बाई L क्यूब, तो 2x क्यूब डिवाइड बाई L, तो हमने V1 के कोफिशिएंट सेपरेट कर लिए। सिमिलरली वी हैव सेपरेटेड द कोफिशिएंट्स ऑफ θ1, ये सेपरेट हो गया। Similarly, we have separated the coefficient of θ2 and V2, θ2 and V2, ठीक है, तो V की वैल्यू हमारी ये आ गई 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई L स्क्वायर प्लस 2x बाई L, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा पहला शेप फंक्शन है n1, है ना, दिस इज फर्स्ट शेप फंक्शन V इक्वल टू n1 V1 प्लस n2 θ1, n1 V1 प्लस n2 θ1 प्लस n3 V3, n3 V2 प्लस n4 θ2, n4 θ2. So this is n1, this is n2 and this is n3. जो V2 का कोफिशिएंट है that is n3 और जो θ2 का कोफिशिएंट है that is n4. तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया।
ठीक है, n1 हमने नोट डाउन कर लिया, 1 माइनस 3x² बाई एल स्क्वायर प्लस 2x³ बाई एल क्यूब। n2 नोट डाउन कर लिया, x माइनस समथिंग। n3 नोट डाउन कर लिया, n3 ये वाला है, ये नहीं है n3। ठीक है, v1 का कोफिशिएंट n1, θ1 का n2, v2 का n3 और θ2 का n4, ऐसे याद रखिए। n1 v1 प्लस n2 θ1, उसके बाद n3 v2 प्लस n4 θ2। ठीक है, तो ये n4 हमारा आ गया। हमने ये कुल मिला के चारों सेफ फंक्शन हमने कैलकुलेट कर दिए। वी हैव कैलकुलेटेड ऑल दी सेफ फंक्शंस। ठीक है, और जब सेफ फंक्शंस निकल जाते हैं तो स्टिफनेस मैट्रिक्स आसानी से निकल जाता है। तो वो इसमें डेरिवेशन दे रखा है स्टिफनेस मैट्रिक्स का, है ना, इसको आप एक बार देख लेना फाइल में। कैलकुलेशन है इसमें थोड़ा लंबी। तो ये स्टिफनेस मैट्रिक्स का ये BTBE करके किया हुआ है। इंटीग्रेट करने के बाद हमको फाइनल से ये मैट्रिक्स मिलता है। तो बीम के केस में जो स्टिफनेस मैट्रिक्स होता है वो ये होता है 12 6L माइनस 12 6L। ठीक है, इसको भी ऐसे ही याद रखिएगा थोड़ा सा आइडिया से, जैसे कि आपने ट्रस का याद किया था। तो ये नीचे सिमेट्री है, थोड़ा इसका भी एक लॉजिक आप बना लेना अपने हिसाब से। सो 12 6L माइनस 12 6L, है ना। अब यहाँ सिमेट्री है तो यहाँ 6L आएगा, 6L 4L स्क्वायर, यहाँ माइनस 6L 2L स्क्वायर। ठीक है, और उसी तरह से पूरी सिमेट्री है। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ये हमें मेमोराइज रखना है। और इसके बाहर में क्या है, EI/L3। ट्रस के केस में तो EI/L है, लेकिन बीम के केस में EI/L3 है, ध्यान रखिएगा। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स ये हो गया EI/L3। ठीक है, तो स्टिफनेस मैट्रिक्स करने के बाद फिर तो बस क्या बचता है, एक न्यूमेरिकल, है ना। तो एक न्यूमेरिकल हम बीम पर लेंगे। तो मैं भी एक शेयर कर रहा हूँ आपको एक न्यूमेरिकल। आइडिया लगा बीम का? तो कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है बीम में? देयर आर 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, v1 θ1 v2 θ2। तो जो स्टिफनेस मैट्रिक्स का साइज होता है वो कैसे निकलता है? साइज ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स, उसका एक फॉर्मूला है कि आप क्या करिए, नंबर ऑफ नोड्स मल्टीप्लाइड बाय डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ईच नोड। तो हमारे नोड्स कितने हैं यहाँ पे? 2। हर नोड की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? पहले वाले की v1 θ1 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, सेकंड वाले की भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड 2, दैट इज 4। So that's why the size of the stiffness matrix is 4x4। ठीक है, कभी कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, how will you calculate the size of a stiffness matrix? Number of the nodes multiplied by degrees of freedom, correct? तो अब हम आ जाते हैं इधर। तो अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि there is a beam, it is having 2 degrees of freedom v1 θ1, it is also having 2 degrees of freedom v2 θ2, it is having 4 safe functions n1 n2 n3 and n4. n1 is the safe function for v1, n2 is the safe function for θ1, n3 is for v2 and n4 for θ2. So I can write v equal to n1 v1 n2 θ1 n3 v2 plus n4 θ2. This can be written.
Correct. Similarly, I can also write x equal to n1 x1. हाँ, लिख सकते हैं कि नहीं? अभी इस पे नहीं जा रहे हैं ना. We can write v equal to this much, है ना? So n1, n2, n3, n4 are the state function, and the stiffness matrix for the beam is EI divided by L cube. ध्यान से देखिएगा, अभी पूरा लिखेंगे इसको. 12 के बाद 6L, then -12, then 6L. ठीक है. अब सिमेट्रिक है तो यहाँ भी 6L ही आएगा. 12 6L, यहाँ -12 आएगा और यहाँ पे 6L आएगा. फर्स्ट लाइन, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम विल बी सेम बिकॉज़ इट इज सिमेट्रिक. ठीक है. तो क्या आंसर आया बीम के स्टिफनेस मैट्रिक्स का? 12 6L -12 6L. Then the second one is 4L square, and after that it is -6L and 2L square. है ना? It is 2L square. It is 4L square. Be careful. And now second row and second column will be same. So it is -6L. It is 2L square. And the fourth one is 12 -6L -6L and 4L square. अब इसकी लॉजिक बताइए याद रखने का. प्रत्युष या कोई भी बताए इसको कैसे याद रखा जा सकता है. जैसे आपने ट्रस्ट के लिए बनाई थी लॉजिक, तो इसके लिए भी कोई लॉजिक बताइए. एनीवन, कोई भी, किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो बता सकता है. इसको हम आसानी से ऐसे याद रख सकते हैं. सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर. हाँ, इसका कोई लॉजिक बताएं कैसे याद रख सकते हैं. न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए बार बार यूज होना है ना. एग्जाम में आपको याद होना चाहिए. Four by 4 matrix where L is the length of the element, E is the Young's modulus, I is the moment of inertia. ये I क्या है? सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो बीम के केस में इनर्शिया इंपॉर्टेंट हो जाता है ना. बीम के केस में इनर्शिया, देखो स्टिफनेस मैट्रिक्स में इनर्शिया आया है ना. सॉल्यूशन में देखना कि इनर्शिया क्यों आया. तो बताइए इसको कैसे आप कर सकते हैं. बना लीजिए, कुछ कल बता दीजिएगा, है ना. ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में केवल यहाँ और यहाँ माइनस ही लगना है ना. ऑफ डायगोनल में माइनस लगना है. ये पार्ट और ये पार्ट सेम है, केवल ऑफ डायगोनल में माइनस है. ठीक है. ऑफ डायगोनल में माइनस है. और ये वाले पार्ट एग्जैक्टली सेम है. दिस वन एंड दिस वन, थोड़ा सा अंतर है ना. इनके भी जो ऑफ डायगोनल हैं उन वो नेगेटिव है. ये 6L प्लस है तो यहाँ 6L माइनस है, यहाँ -6L है तो यहाँ 6L. ठीक है. तो इस तरह से कुछ आप बना सकते हैं, और कोई बेटर स्कीम हो तो आप मुझे कल बताइएगा. ठीक है. तो अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ बीम पर. आई एम गिविंग यू ए बीम in which there is a fixed support. This is the beam. Okay, this is our problem 1 on beam. So this is a beam. One end is having fixed support and other end is having roller support. Is having roller support. The length or a load is coming at the middle, that is 20,000 Newton. This distance is 500 centimeters, and this is also 500 centimeters. So total length is 1 meter. 1 meter, not 1 meter. 1 meter, not 1 meter. It is 10 meters.
10 meters है ना. 500 centimeter means 5 meter. तो 5 meter 5 meter 10 meters. Total length is 10 meter. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन में यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द बीम इज गिवन 220 into 10 to the power 6 Newton per centimeter square. This is the Young's modulus, and the moment of inertia is also given 2500 centimeter 4. Okay, if in some questions moment of inertia is not given, then you can find it by the cross section. If the cross section is circular, then moment of inertia is pi by 64 d4. If the cross section is rectangular, then moment of inertia is bh3 by 12. So here moment of inertia is directly given. Moment of inertia is directly given. Okay. अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप हमें ये बताएं कि इस पॉइंट पर कितनी रिएक्शन है. ठीक है. इस पॉइंट पर कितना रिएक्शन है, कितना फोर्स है, कितना मोमेंट है ना. शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, ये सारी चीजें. और इस वाले पॉइंट पर ये जो एरो है, इस पॉइंट पर कितना डिफ्लेक्शन. तो देखो अब इस पूरी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इस पूरी प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, बिकॉज देयर इज ए लोड एट द मिडिल, so we will consider this point as a node. So in the total problem there will be 3 nodes. First is the node number 1, then node number 2, and then node number 3. So total problem is divided into 3 nodes and 2 elements. So this is element number 1, this is element number 2. Okay, what is the degrees of freedom at node number 1? They are V1 and theta 1, and here it is V2 theta 2, and here it is V3 theta 3. Yeah, these are the 6 degrees of freedom. Now, shear force is F1 here, bending moment is M1 here, shear force is F2 here, bending moment is M2 here, shear force is F3 here, bending moment is M3 here. इतनी सारी चीजें है ना. F1, M1, F2, M2, F3, M3 है ना. सिमिलरली V1 थीटा 1, V2 थीटा 2, V3 थीटा 2. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है. हाँ जी प्रत्युष, यहाँ तक क्लियर है? यस सर. तो अब हमारे पास जो बेसिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जरा बताओ. हमारे पास बेसिक इक्वेशन होती है F इक्वल टू K डेल्टा. F इक्वल टू K डेल्टा, यही तो होती है. अब इसमें F हमारा क्या है, डेल्टा हमारा क्या है, K हमारा क्या है. तो K तो हमारा स्टिफनेस मैट्रिक्स है. ठीक है. तो हम K1 निकाल, सबसे पहले हम पहले एलिमेंट के लिए K1 निकालेंगे. तो K1 कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला EI बाई एल क्यूब, और वही 4/4 की मैट्रिक्स याद है, 12 6L 6L 4L स्क्वायर. फिर मैंने यहां लिख दिया 12 6L 6L 4L स्क्वायर, और ऑफ डायगोनल मैंने कर दिया नेगेटिव. फिर मैंने यहां लिख दिया -12 6L. ठीक है. और उसके बाद मैंने लिख दिया 6L 2L स्क्वायर. ठीक है, यही है ना, चेक करो जरा. -12 6L 4L 2L स्क्वायर. 4L स्क्वायर का 2L स्क्वायर हो गया, 12 का -12 हो गया. अब इसको एज इट इज उतार के -12 2L स्क्वायर 6L 6L, इसके जो ऑफ डायगोनल है वो कर दिया हमने नेगेटिव. वही कंप्लीट इक्वेशन. अब इस इक्वेशन में यदि हम वैल्यूज रखें तो हमें क्या मिलेगा. आई एम जस्ट चेंजिंग द पॉइंटर ऑप्शन. So I will get K1 will be, ध्यान से देखिए, K1 will be
सबसे पहले तो मुझे चाहिए EI बाई LQ, तो पहले इसको सॉल्व कर लें। EI डिवाइडेड बाई LQ, ये चाहिए ना। तो E कितना है 220 इंटू 10⁶। फोर्स की यूनिट न्यूटन में और लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर में। इनर्शिया सेंटीमीटर पावर 4 है, तो न्यूटन और सेंटीमीटर में चलते हैं, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो न्यूटन और सेंटीमीटर में सॉल्व कर देते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ चेंज ऑफ द यूनिट। यूनिट कॉम्पिटिबिलिटी ऑलरेडी है, यदि यूनिट कॉम्पिटिबिलिटी नहीं है देन यू हैव टू चेंज इट, है ना। तो सारा कुछ सही है। अब इनर्शिया हमने रख दिया 2500 डिवाइडेड बाय लेंथ इज 500 पावर क्यूब। सॉल्व करके बताइए कितना आता है सर 4400। कितना 4400। 4400 है ना, तो 4400 हमारा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब पहला टर्म 12 है, दूसरा टर्म 6L, L की वैल्यू 500, तो ये 3000 हो जाएगा। फिर -12, फिर 3000, फिर से 3000। अब 4L² कितना आएगा बताओ। L की वैल्यू 500 है, तो 4 इंटू 500 स्क्वायर, इसको सॉल्व करिए कितना आता है। तो 10⁶। 10 की पावर 6 आ जाएगा, है ना। तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर 10 पावर 6, 1 इंटू 10⁶। देन 6L, so 6L is again 3000. Then 2L², 2L² कितना आएगा बताओ। 4L² की जगह 2L² है, तो 2 इंटू 500 स्क्वायर, उसका आधा आ जाएगा। ये 1 इंटू 10⁶ है, तो ये हाफ इंटू 10⁶ हो जाएगा, है ना, या 5 इंटू 10⁵ हो जाएगा, है ना। 5 स्क्वायर 25, 5 इंटू 10⁵ हो जाएगा। सो आई विल राइट 5 इंटू 10⁵। अब आगे के जो टर्म है वो सिमेट्रिकल होंगे। पहली रो पहले उसकी तरह रख दो, -12 3000। दूसरी रो भी सिमेट्रिकल हो गई, 3000, 5 इंटू 10⁵। अब इसको एज इट इज उतार लो, 12 ऑफ डायगोनल नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव कर दिया, और 1 इंटू 10⁶। बताओ ये सही है गलत है, कोई वैल्यू गलत तो नहीं है, सही है सब कुछ। सो K1 इज क्लियर, है ना। K1 फॉर द फर्स्ट एलिमेंट, हमने प्रॉब्लम को दो पार्ट में डिवाइड किया, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट। तो द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द फर्स्ट एलिमेंट इज दिस वन, ठीक है। नाउ प्लीज टेल मी द स्टिफनेस मैट्रिक्स फॉर द सेकंड एलिमेंट, ठीक है। तो सेकंड एलिमेंट के लिए स्टिफनेस मैट्रिक्स क्या होगी, प्लीज आप लोग बताइए। सर यही होगी ना। हाँ बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि लेंथ भी बराबर है, इनर्शिया भी बराबर है, यंग्स मॉडुलस भी वही है ना। यदि क्वेश्चन में अलग अलग दे रखा हो तब तो अलग आएगा। तो मेरे ख्याल से जो बाहर वाली वैल्यू है 4400 वो भी वही आएगी। अंदर की वैल्यूज L पर डिपेंड करती हैं, और L दोनों केस में सेम है। तो K2 will be equal to K1, so it will be totally same as K1, same as K1, सेम होंगे। K1 and K2 must be same in our case, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, पहले वाले केस में हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मेंशन कर दें, तो ध्यान से देखिएगा। इन फर्स्ट केस आई विल मेंशन the degrees of freedom. So I will write V1 θ1, V2 θ2, and similarly V1 θ1, V2 θ2. And in K2 connects node 2 and node 3, so its degree of freedom will be V2 θ2, V3 θ3, and similarly V2 θ2, V3